بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا مولا الكونين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والشجاعة الحسينية والعلم الحسنية والعبادة السجادية والمسار الباقرية والآثار الجعفرية والحجاج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا من نظر الجميل وستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفي يا عظيم المن يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها ناس البار اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی پاک ہستیوں کے سپرد ہم لوگ سب لوگ ہیں. ہر وقت شکر کرنا چاہیے. ایسے عزا خانے ایسے عبادت خانوں میں ہم لوگوں کو توفیق دی ہے اور آپ سب کی خدمت میں نادفشان رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول و سلام وعلیکم السلام. اور بہت سی دعا ہے آپ لوگوں کے لیے. مولا سب کو سلامت رکھے. اور ہم صاحب خانہ کے بھی بہت شکر گزار ہیں. آپ سب سامعین کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ اتنا قیمتی وقت نکال کے آپ لوگوں کی سماعتوں کو سلام ہے کہ بہت ہی تہذیب کے ساتھ بہت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ مجلسوں کو سنتے ہیں. یہ بات ایک سچ ہے کہ ذاکر اور ذاکرہ مجلس پڑھنے تو آتے ہیں لیکن یہ مجمع کی بھی بات ہوتی ہے کہ وہ کیا پڑھوا لیتے ہیں اور کتنا پڑھوا لیتے ہیں. تو اس کے لیے ہم واقعی شکر گزار ہیں کہ آپ بہت اچھے سامعین ہیں ماشاءاللہ. اور بچہ تربیت بھی یہاں پر اچھی ہے سب کی کہ بچے بھی بہت شوقین ہیں اور دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں. کل بھی کچھ باتیں کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کیے تھے میں نے اور میں سوچ رہی تھی کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل کی مجلس پڑھوں گی. تو مولا کا شکریہ کہ واقعی زندہ سے واقعی ایک ایک لمحے کا پروردگار عالم کا شکریہ کرنا چاہیے. جو آج کل کے حالات اور معاملات ہیں کہ اچانک کی کتنی موتیں ہو رہی ہیں. تو دیکھیں یہ ذہن میں آ گیا کہ سورۃ تغابن کی اگر تلاوت کری جائے اور یہ ریگولر کری جائے تو اچانک کی موت نہیں ہوتی ہے. یہ موضوع نہیں ہے لیکن وہی میں بیوی سے کہتی ہوں کہ بیوی جو آپ اس مجمع کو دلوائیے گا سب آپ کا خزانہ ہے. جب آپ چاہیے گا کہتے نہیں ہے ممبر سے پیمبر کے زباں کھول رہی ہوں ممبر کے پیمبر کے زباں کھول رہی ہوں اور جنبش وہی دیتے ہیں میرے
दहान कफस को, और दुनिया ये समझती है कि मैं बोल रही हूँ। सलवात भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैं क्या, किसी की हिम्मत ताकत नहीं है जो बोल सके। शहजादी का करम है, पंजतन के सदक़े में हम लोग अपने आप लोगों की समातों को और अपनी ज़बानों को भी उन्हीं के हवाले करते हैं, है ना, तभी कुछ बोल पाते हैं। तो आज इस अज़ा खाने की आखिरी मजलिस है। रात भर शब्बेदारियाँ हुई हैं, कितनी नूरानी मजलिस सुना है, 10-12 अंजुमनें माशाल्लाह पढ़ गई हैं, और इतना उम्दा अज़ा खाना, इतना अच्छा कल ताबूत उठा, आज ताज़िया उठना है। तो जो भी है हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। के कहा ना कि इंद्र दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। कुरान मजीद, फुरकान हमीद, परवरदिगार आलम ने इसमें इरशाद फरमाया कि सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है। अब ये बात वाज़ेह हो गई कि कायनात में जितनी भलाइयाँ हैं, जितनी अच्छाइयाँ हैं, जितनी कामयाबियाँ हैं, जितनी कामरानियाँ हैं, जो कुछ भी अच्छा है, खूबसूरत है, अजमतों वाला है, रहमतों वाला है, बरकतों वाला है, वो सब इधर है। और इसके बरक्स कहें या अपोजिट कहें या विलोम कहें, तो जितनी बुराइयां हैं, जितनी तनज़्ज़ुली है, जितनी बर्बादी है, जितनी खराबी है, वो सब उधर है। चूँकि ताज़िया उठना है तो आज बात इसी पर हो कि कल हम लोग बात कर रहे थे क़ल्ब सलीम और अमल साले, कि अपने क़ल्ब को सलीम रखना है, अपने अमल को साले रखना है, जिसका ये करबला दलील है। कुरान मजीद की एक एक आयत की वजाहत जब करी जाए तो आप देखिए, इसकी तफसीर कुरान पढ़िए तो समझिए इनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हम लोगों के लिए दर्सगाह है, दर्सगाह। अगर उस पर इंशाअल्लाह हम लोग चले तो खुदा की कसम कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी हम लोग मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो और मौला का इंतज़ार कर रहे हैं, और मौला का इंतज़ार कर रहे हैं। जब मौला तशरीफ़ लाएंगे तो क्या होगा, जुल्म का खात्मा होगा, है ना, इंशाअल्लाह। तो खात्मा होगा, इसके मतलब जुल्म बुरी चीज़ है, गलत चीज़ है, गुनाह कबीरा है, गुनाह अजीम है। जब हमें मालूम है कि हम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो जुल्म से नफ़रत करते हैं, कुरान भी हमें बता रहा है जुल्म गलत बात है, तो फिर हम जुल्म क्यों करते हैं? जब आका के ऊपर जो जुल्म किया गया, शहजादी पर जो जुल्म किया गया, उसके लिए हम जार जार रोते हैं, ठीक है। लेकिन अपना जहाँ खुदगर्जी आई, जहाँ पर हमको तकलीफ हुई, हम दूसरों को जार जार रुलाने में भी देर नहीं लगाते। तो बस अब याम अज़ा ख़त्म हो रहे हैं, हम लोगों को अपना तज़किया करना है, अपने को टटोलना है। क्योंकि कहते हैं ना कि सब दूध के धुले नहीं होते, ये यकीनन नहीं होते। हम तो हज़रत इंसान हैं, कहते हैं जितने ज़मीन पर इंसान है उतने खाली। हम लोग छोटे थे तो समझते थे शैतान एक है, नहीं, पूरा लश्कर है शैतान का। रवायत में मिलता है कि इसीलिए कहते हैं दोनों खत मिलते, बच्चों को अपने पास रखो, छोटे बच्चों को गोद में रखो, क्योंकि शैतान जैसे ही मगरिब का वक्त होता है, रात होते ही वो अपने लश्कर को मुंतशिर कर देता है, सारे में फैला देता है। कि बस कहा ना उसने, दू बदू परवरदिगार आलम की आंखों में आंखें डाल के बहकाऊंगा। किसको बहकाऊंगा? हर इंसान को बहकाऊंगा। कैसे बहकाऊंगा? कहा ला यकुदन्ना लहुम, यकुदन्ना मतलब ये जुमले में वजन पैदा करता है। ला यकुदन्ना लहुम, जरूर बहकाऊंगा। शैतान ने अल्लाह से वादा कर लिया कि बहकाऊंगा। परवरदिगार आलम ने भी कहा जा बहका ले, जा बहका ले। कहा तो दे दे, तू हमको कहा क्या दे दे? कहा चारों सिद्ध दे दे, हम बहकाएंगे।
तो कहा ले ले, चारों सिमत ले ले, है ना, चारों सिमत ले ले, लेकिन जो हमें चाहने वाले हैं वो हमारे लिए सजदा करेंगे, में जमीन पर सजदा करेंगे और आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ करेंगे। जब वो सजदा करेंगे तब मैं उनकी सुनूंगा, और जब वो हाथ उठा के दुआ करेंगे तब मैं उसकी सुनूंगा। तो तुम बहका लो। और कल मैंने मजलिस में एक तस्बीह बता दी थी कि सलवात पढ़ के चौथे इमाम अलैहिस्सलाम को अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बख्शिए तो इंशाल्लाह शैतान दूर रहता है। सो और लोगों की शिकायत ये आती कि बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, बच्चे कहना नहीं सुनते, वगैरह वगैरह होता है ना। तो आका बेहजत फरमाते हैं कि सूरे अनाम की और शायद 33 नंबर की आयत है, अगर मैं मौला गलत ना हूँ तो 103 क्या है, सूर्य अनाम पढ़ लिया करिए, पढ़वा दिया करिए बच्चों को। सूर्य अनाम के हवाले से मिलता है कि बच्चों का पढ़ाई में भी दिल लगेगा। और सूर्य आराफ की 171 आयत को लिख के अगर सबक में रखें तो चाहे केजी नर्सरी में हो, चाहे डॉक्टर इंजीनियर बने, तो सबक जल्दी जल्दी याद होगा। हर खुश्क होता है जब इसमें है, तो मोमिन क्यों परेशान है। कौन सी ऐसी दुआ है, कौन सी ऐसी दवा है जो कुरान मजीद में नहीं है। सब कुछ मयस्सर है, दुआ तावीज़ की तरफ नहीं जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन जाते नहीं हैं, मगर फिर भी आजकल शिकायतें हो रही हैं और बहुत हो रही हैं। तो दुआ तावीज़ ये समझ लीजिए, उसने दुनिया में ही जहन्नुम खोद लिया, जहन्नुम का रास्ता उसने दुनिया में ही बना लिया। पता है ये जो दुनिया है ना, तो ये मंजिल नहीं है, ये हम लोग मुसाफिर हैं, ये मुसाफिर खाना है, ये रास्ता है। दुनिया ये मंजिल नहीं है, मंजिल तो कोई और है। जनाब नूह के हवाले से मिलता है कितने 900 साल से भी ऊपर जिए थे, तो क्या ये उनकी मंजिल हो गई दुनिया? चाहे कोई कितना भी जी ले, दुनिया मंजिल नहीं है। तो जब मंजिल नहीं है तो सफ़र में मुसाफरत में बस उतना ही रखते हैं कि जितना चाहिए, और मंजिल का ज़्यादा इंतज़ाम करते हैं। मेरे मौला अली से किसी ने पूछा, सलवार भेजिए, सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पूछा कि आप तो शहंशाह हैं, आप तो बादशाह हैं, आप तो राजा, एक तरह मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, तो आपका रहन सहन क्या है? बोरिया नशीन कहलाते थे, है ना, सूखी रोटी घुटने से तोड़ के खाते थे। हम आप खा सकते हैं, हमारे आपके बच्चे पिज्जा से नीचे नहीं उतर रहे, बर्गर से नीचे नहीं उतर रहे, खा सकते हैं। तो कहा कि ये बताओ, इंसान सफ़र में, मौला फरमा रहे हैं कि इंसान सफ़र में क्या क्या लेके जाता है। अगर बस इतना लेके चलना चाहिए, जहाँ स्टेशन आ जाए उतारे जाए, जहाँ स्टेशन आ जाए उतारे जाए, तो बस हम फौरन उतर जाए, तो उसमें तकलीफ भी ना हो। सलवात भेजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम लोग ये सब जो कोशिशें काविशें कर रहे हैं, ताबूत, अलम, ताज़िए, सबील और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, खैरात, जो सब कर रहे हैं, काहे के लिए? वहाँ की कामयाबी के लिए ना, वहाँ की कामयाबी के लिए। तो ये सब तो हो ही रहा है, माल से हो रहा है, आज़ा जवारे से हो रहा है, सब से हो रहा है, लेकिन ज़बान से क्या हो रहा है? ज़बान से क्या हो रहा है? परवरदिगारे आलम ने, आप देखें, जहाँ शहीद दस्ते गैबी की जो किताब है गुनाह कबीरा, तो वो पढ़िए, आपका दिल लरस जाएगा। एक एक गुनाह के बारे में उन्होंने डिटेल से बताया है। और वो क्या अपने आखिरी चैप्टर में कह रहे हैं कि देखो, किसी का दिल ना तोड़ो, किसी का दिल ना तोड़ो। क्यों ना तोड़ो? कहा किसी का दिल तोड़ना खाने काबा के तोड़ने से ज्यादा गुनाह है। तो किसी का दिल, हम लोग सोच ही लेते वक्त कि दिन भर हमने कितनों का दिल दुखाया।
اگر تربیت ہم کو مجلسوں سے نہ ملی، اگر ہم نے اپنا تجزیہ نہیں کیا، ہم نے اپنی برائیوں کو نہیں چھوڑا، اپنی برائیوں کو چھوڑ کے اچھائیوں کی طرف راغب نہ ہوئے، تو یہ سب پڑھنا بھی بیکار ہے، سننا بھی بیکار ہے، کرنا بھی بیکار ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو کام یہ کرنا ہے جس سے مولا خوش ہوں، بیوی کا کرم ہم پر برقرار رہے۔ عزیزان محترم، امام مولا سب کو حج و زیارت کی توفیق نصیب کریں انشاءاللہ۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے پر جب جو لوگ گئے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ وہاں زری پاس جاتے جیسے لگتا ہے کلیجہ نکلا جا رہا ہے باہر کو، زری پکڑ لی تو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا ہے، بس پکڑ کے ہر شخص دعا کرتا رہتا ہے، دعا کرنا چاہتا ہے، دعا ہی کرنا چاہتا ہے۔ تو وہاں کے جو خادمائیں ہیں، مردوں میں جو خدام ہیں، وہ ایک سافٹ سی مطلب نرم نرم سا لیے رہتے ہیں اسٹک، اور اس سے کہتے ہیں کہ مطلب آگے بڑھو، آگے ہٹو، آگے ہٹو، ایسے کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک تھے خدام، انہی نے کیا، ان کے خواب میں مولا تشریف لائے اور انہی نے اپنا زخم دکھایا، کہا اے مولا یہ، کہنے لگے ہاں یہ، کہنے لگے آپ کو تکلیف کس نے دی؟ کہا تم نے دی۔ بچوں، اگر اس وقت اتنی سی بات یاد رہ گئی تو خدا کی قسم قربتاً لا کر کے ہر کام اپنے اسلامک فریم میں کرو گے، اور ہمیشہ چاہے گھر میں رہو، چاہے اسکول میں، چاہے آفس میں، چاہے کہیں رہو، 14 کیمروں کا خیال رکھو کہ وہ 14 کا فوکس میرے اوپر ہے۔ میری مما یہاں پر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میرے بابا یہاں پر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میرے شوہر یہاں پر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مگر وہ ہے جس کے پاس یہ سارا رجسٹر جانا ہے، وہ ہے جس کو سب حساب کتاب کرنا ہے۔ کہا تم نے مارا؟ اب ظاہر سی بات ہے ہم لوگ مولا کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اور خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ مولا کہہ دے صاف صاف کہ تم نے اذیت کی، اس کے دل کا کیا عالم ہوگا۔ اس نے کہا مولا ہم نے کہا تم نے اس زائر کو جو چھڑی ماری تھی نا، وہ میرے یہاں پر ہو گئی ہے، آپ یہ سمجھیے۔ تو ہم کو اتنی سی بھی تکلیف نہیں دینا ہے، اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے کہ مولا اچھا آپ اچھے بنتے رہیے گا، اچھا کرتے رہیے گا، یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، لوگ پیچھے لگ جائیں گے، جتنا آپ اچھا کرتے چلے جائیں گے اتنا لوگ برا کرواتے چلے جائیں گے، کرتے غیبت غربت کرنا شروع کر دیں گے، اپنے کو بڑی بنتی ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے حجاب کرنا شروع کیا تو وہ کہتے ہیں لو اب بڑی مومنہ بن گئی ہے، ابھی کل تک تو ایسے ہی۔ یہ سب سماج میں ہو رہا ہے، ہونے دیجیے، دوسرے کے چکر میں اپنی عاقبت نہیں خراب کریے۔ وہ جو کہہ رہا ہے اس کو بھی اس نے سنا، جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی وہ دیکھے گا، تو اس لیے اگر سمجھا سکتے ہیں اس کو سمجھائیے، نہیں سمجھا سکتے تو عمل سے اپنے اس کو بتائیے کہ یہی بہتر ہے۔ صلوات بھیجیے ایک محمد۔ اسی طرح مقدس البیلی کے حوالے سے ملتا ہے، اور بھی تمام لوگوں کے حوالے سے تمام واقعات ہیں، کہاں تک میں بتاؤں، کہاں تک سناؤں، کہ رجب علی خیاط تھے، اور وہ جو ہیں سلائی کرتے تھے۔ ہم لوگ ٹیلر کی کوئی اہمیت سمجھتے ہیں؟ ارے وہ کپڑے سیتی ہیں، یہی تو بات ہے۔ تو ہاں حلال سے جو کل میں نے ایک واقعہ بتایا تھا، جوتی گاڑتے ہیں جو، وہاں پر مولا بیٹھی ہے، اور کہا کہ میری انہوں نے کہا نہیں مولا وعدہ، یہ 3 پڑھے ہیں، یہ لوگ کو یاد واقعہ بتا رہے تھے نا، اس کو آج میں مکمل کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کل کی بھی مجلس پڑھنا ہے، تو کل مجھے کچھ اور بات کرنا تھی، یہیں پہ چھوڑ دیا تھا۔ تو مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تیسری بار بھی کہہ کے مولا یہی کہتے رہے کہ وہ، اس نے کہا کہ نہیں مولا یہ 3 کر دوں، تب مولا نے اس کو سینے سے لگایا، کہا کہ ایسے مومن چاہیے، ان کو موچی ہے وہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، برانڈیڈ ہم تاج ہوٹل میں جا کے کھائیں تو ہم بہت اچھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو ہم
हम बहुत अच्छे, या हम बहुत अच्छा ब्रांड के पहने तो हम बहुत अच्छे, हम बहुत बड़ी गाड़ी से उतरे तो हम बहुत अच्छे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे हर मोमिन को दुनिया में जो सुख आए सब मिले, मोमिन का हक है जरूर मिले। लेकिन अगर बड़ा घर मिल जाए, अगर बड़ा घर मिल जाए और वहाँ मेहमानों की इज्जत ना हो तो बेकार है ना, तो बेकार। हमारे पास सारा इल्म आ जाए और दूसरों का अदब ना हो तो बेकार, वो डिग्रियां बेकार है। खुदा की कसम, जो डिग्रियां लेने के बाद बाइखलाक नहीं है, जो अपने रिश्तों को निभा नहीं पा रहे हैं, जो बड़ों का अदब नहीं कर पा रहे हैं, जो छोटों से मोहब्बत नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी डिग्रियां बेकार है। तो देखो इस्लाम की तराजू और है, उसका म्यार और है, उसका जायजा और है, उसका खाका और है। तो बस अगर हमारा पूरा फोकस हमारी रगो पा में अगर ये पेवस्त होगा कि हम जो कर रहे हैं मौला के लिए कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं परवरदिगार आलम खुशनुदिया इलाही के लिए कर रहे हैं, और दूसरों के हक में दुआ मांगते चले जाएं। मोमिन है, कहते हैं कि अगर कोई मोमिन है और आपका दुश्मन है, और वो समझिए आपका भी दुश्मन, जो मेरा दुश्मन है उसको आप दुश्मन समझिए, और अगर कोई मोमिन है आपका दुश्मन है तो उसको आप ना समझिए, तो समझ ही लेंगे। सलवात भेजिए थोड़ा बहुत। देखो कि छोटे छोटे बच्चे आगे बैठते हैं सुनने तो दिल खुश होता है, दिलों के लिए भी खुश होना चाहिए, इसलिए बोल दिया कि हम तो समझ ही लेंगे अगर मेरे जैसा नहीं करोगे जैसा आप कह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो मौला को चाहते हुए जब भी कुछ काम करें, मौला को चाहते हुए काम करें। तो इसलिए आप देखिए कहा कि जब गुस्सा, जो गुस्सा पी लेता है, क्या सारी बर्बादी गुस्से से है ना। ये बात हुई नहीं कि हमको गुस्सा आ गया, वो उसने किया नहीं कि हमको गुस्सा आ गया, सारी बर्बादियां या तो लालच या गुस्सा है ना, हिर्स, तमा, लालच, गुस्सा, ग़ीबत, ये सब अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए, अपने को आला अफजल करने के लिए जो है नहीं, और उसको सब पता है कि है नहीं, और अपने को करने के लिए सब इंसान करता है और तनज़्ज़ुली की तरफ जाता चला जाता है। तो कुरान मजीद की आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, कि मतलब जब यही इंसान अगर अमल के, इल्म के और दिल से, जैसे हमने कहा ना कि अपने दिल को निखालिस रखो, एकदम सच्चा साफ रखो, और अमल और इल्म के, अकीदे के जो दो मर्द लगा लिए, तो यही इंसान होता है। कोई बीसम बनता है, कोई मर्दाद बनता है, कोई कम्बर बनता है। ये तो मासूम नहीं थे, हम ही आप जैसे इंसान थे, अपने आप